Hi guys, welcome back to my YouTube channel. इस वीडियो में we're gonna be talking about NEET PG 2024, कैसे उसको क्रैक करना है and what is the plan exactly. So assuming there are only about 120 days to go. Why assuming only 120 days to go? Because पिछली बार भी they've stuck the NMC has stuck to their timeline. बाद में केस होने के बाद भी there was no delay in the examination schedule. However many people were left, they extended the internship deadline. They did conduct the exam on the previously declared date. So we are assuming कि इस बार भी एग्जाम शेड्यूल पर सेट करने के लिए सही टाइम पर होगा. एंड व्हाट वुड दैट राइट टाइम बी? दैट राइट टाइम वुड बी first Sunday of January. So we have about 120 days to go. So how do we go about things now? There are going to be 5 things which will lead you to success. First is going to be your plan. Plan सबसे important चीज है. I'll let you know how you would make that plan. Second is going to be your motivation levels throughout these 120 days, throughout these 4 months. ठीक है. Third is going to be the execution of your plan. ठीक है. Fourth is going to be the limited resources that you're going to use, which I'm going to tell. And fifth is going to be multiple revisions. उसके बारे में भी I'll let you know in detail. First we come on to the first aspect of our preparation, which is the plan. Plan कैसे बनाना है? ठीक है. First we got to know where we stand. सबसे पहले अपन एक GT देखेंगे या अपनी नीट पीजी की रैंक देखेंगे फॉर इंटर्नशिप पीपल एंड फॉर ड्रॉप पीपल. दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ. कई लोगों की सीट इस बार जस्ट एक निक से छूट गई है बिकॉज देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ शिफ्ट इन द रैंक्स between round 1 and round 2, and now you have 120 days. You really want to do something for yourself. So post UG people and just doing their internship people. ठीक है. तो कैसे करना है? सबसे पहले कैसे प्लान करेंगे अपन? अपने को गोल सेटिंग करना है. तो गोल सेटिंग कैसे करेंगे? इस साल किस रैंक पे क्या अलॉट हो रहा है उसको अपने को आइडिया में रखना है. एंड वी गॉट टू सी, वी गॉट टू जज दैट वे फॉर व्हाट सब्जेक्ट एंड व्हाट अमाउंट ऑफ फी, वे डू वी वांट टू गो. कहाँ तक अपनी रैंक आनी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए. ठीक है. इसके लिए अभी तुम्हें रिसर्च में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. आई एम गोइंग टू बी कमिंग आउट विद वीडियोस ब्रांच वाइज. ओके. सो ब्रांच वाइज आई एम गोना टेल कि कहाँ पे कितने में कौन सी स्टेट में किस टाइप के कॉलेजेस मिल रहे हैं. Branch wise I'm gonna put out those videos. Once our goal is set, ठीक है, now we'll come down to 4 monthly, 2 monthly, 1 monthly and weekly and daily plans. ठीक है. तो कैसे लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करके शॉर्ट टर्म गोल्स डिजाइन करने अपने को. ठीक है. सो फर्स्ट लॉन्ग टर्म गोल ऑफ आवर्स विल बी INICT. नवंबर INICT कब है? 5 नवंबर को है. ठीक है. अब उस तक अपना क्या हो जाना चाहिए? अपना एक बार फुल्ली कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है. कोर्स कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ? कोर्स कंप्लीट करने का मतलब ये हुआ कि हर सब्जेक्ट का हमारे वीडियोस हो जाने चाहिए, हमारे PYQs हो जाने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो जाने चाहिए और उसके सारे क्वेश्चंस जो आज तक आए हैं उस सब्जेक्ट के तब तक डन हो जाने चाहिए. इसका मतलब होता है सब्जेक्ट कंप्लीट करना. ठीक है. कैसे करेंगे दैट आई गिव यू. वो प्लान आई डिजाइन फॉर यू. सो व्हाट रिसोर्स वील बी यूजिंग इज मैरो ओनली. ठीक है. आई कुड सजेस्ट यू अ लॉट ऑफ सोर्सेज और पीपल कुड सजेस्ट यू अ लॉट ऑफ सोर्सेज, but going here and there for stuff at this point of time is not going to be very beneficial for any of you. So I would just suggest you to stick to one source so that everything is in sync right now. तुम्हें कहीं से कुछ मिसमैच नहीं मिलेगा. इंफॉर्मेशन का फ्लो एक बना रहेगा एक ही ऐप पर. सो आई रियली सजेस्ट कि we'll do it on Marrow. ठीक है. So what I've done now is that I have broken your 120 days into phases. So we'll have 3 phases till the NEET PG exam. The first phase is going to start from today till the INICT exam. In this phase, we'll just be focusing on covering the whole syllabus once. Covering the whole syllabus once according to this plan means that we're going to be doing the subject-wise test once, MCQ discussion videos once,
revision videos once and previous year questions, right? So completing a subject would include all these four things. Okay. Now what I've done is I've mentioned the number of hours it's gonna take to complete a particular subject's MCQ discussion videos and your रिविजन वीडियोस. सो जितने भी घंटों का वो एक प्लान बना है एक सब्जेक्ट का, दैट आई हैव गिवन अ नंबर एंड अकॉर्डिंग टू दैट किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लग रहा है, आई हैव मेड अ शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट 60 days till 5th November till the INI-CET. So these subjects will be covered according to the plan and INI-CET that we'll be able to finish our syllabus once. After that we'll do a couple of revisions which I'm gonna tell you how you're gonna go about those things. First, in this video, we'll just be focusing on the plan till the exam. So, how we're gonna cover? Okay. So I've started with OBGY. Okay. OBGY is one of the most scoring subjects. इसमें if you understand a little, answers are very straightforward. There is no confusing answer in OBGY. Straight question, straight answer, and it covers a big chunk in your NEET PG exam. So we're gonna start with OBGY so that we get a little confidence after completing it that yeah, now we are able to deal with the question paper better because अच्छा चंक आता है OBGY का. ठीक है. Henceforth इसमें अब संडे टू संडे अपना GT होगा, उसका evaluation होगा, that all I have already mentioned. ठीक है. So OBGY से चालू करके we're gonna go from subject to subject. The schedule is gonna be here. ठीक है. और before every GT या every Sunday I have included a small subject. ठीक है. उससे क्या होता है कि impact ज़्यादा आता है. 2 दिन का subject है, डरमा पूरा किया तो एक थोड़ा impact आता है कि हाँ now डरमा questions we are able to do. उससे you get a little morale boost. ठीक है. So this is how we're gonna go. अब इस 120 डे का कैसे रखना है, डे वाइज प्लान. ठीक है. सो डे वाइज प्लान इज गोना इंक्लूड 4 थिंग्स मेजर. ठीक है. MCQs मॉर्निंग इवनिंग, सब्जेक्ट वाइज सुबह जो तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और इवनिंग में ओवरऑल MCQs. दीज MCQs आर ओनली गोना बी PYQs. ठीक है. सेकेंड इज रिविजन. रिविजन कैसे करना है, पढ़ते पढ़ते. ठीक है. तो एक कैलेंडर दूंगा मैं. I'll add the PDF file in the description. ठीक है. उस कैलेंडर में तुम्हें बस आज जो तुम पढ़ रहे हो ना, that data you have to enter. Day 1, Day 3, Day 5, Day 15 and Day 30. ठीक है. इस पे तुम्हारा उसका रिविजन होगा. Suppose you've given 3 hours today for some topic. ठीक है. Tomorrow again it will take you like 2 hours maybe or 1.5 hour maybe. On the 5th day, it's gonna take you 45 minutes. On the 15th day, it's gonna take you 30 minutes. On the 30th day, it should take you 15 minutes to revise that thing because this is gonna be your 5th revision. ठीक है. तो हम ऐसे करके पढ़ते पढ़ते रिवाइज करते चलेंगे. ठीक है. ताकि हमारा हमेशा रिकलेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. इससे क्या होगा कि एंड ऑफ 2 months अपना मल्टीपल रिविजन ऑलरेडी हो चुका होगा. So even if you are at 0 right now, literally 0, if you follow this plan, you're gonna get a lot ahead. मतलब बहुत सारे लोग जो अभी haywire तरीके से prepare कर रहे हैं, even if in the last 3 months से वो prepare कर रहे हैं, you're gonna go ahead of them in 2 months. Believe me. Just follow the plan, just follow the schedule, stick to it. Just stick to it for 120 days. एंड बेसिकली टिल द INI-CET. अभी मेरे इनिशियल प्लान में सिर्फ यहाँ तक स्टिक करो. उसके बाद का प्लान आई गिव यू इन अ फ्यू डेज. ठीक है. ताकि तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आए. एंड व्हाई एम आई, हु एम आई, व्हाई एम आई गिविंग इट? बिकॉज मैंने किया है. आई हैव फॉलोड दिस प्लान एंड आई हैव इंक्रीज माई रैंक 1 lakh. I was at 1,23,000 and this year I am at 21,000. In just 6 months I've done 1 lakh ka improvement. So believe it or not, you're gonna get benefit of it. Just do it. Just follow the schedule and feel the difference, feel the change. Just follow the rules of my game. 25 सुबह 25 शाम को स्टार्टिंग में. ठीक है. ये नंबर इंक्रीज होने चाहिए. एटलीस्ट एवरी 4th day 10 बढ़ाने हैं. ठीक है. जितना हो पाए उतना खींचना है. 100 तक जाना है.
आराम से 100 तक जाना है डेली बेसिस पे, ठीक है। धीरे धीरे करके 10 बढ़ा के 100 तक पहुंचेंगे फटाफट, ठीक है। ये PYQ जो तुम कर रहे हो, ठीक है, इसमें मैरो में बहुत ही ब्यूटीफुल सा आंसर आता है एक PYQ सॉल्व करने के बाद। जो भी फॉर्मेट तुम्हें सूट करे, क्यू बैंक वाला या आंसर वाला, मतलब क्यू बैंक वाला या एग्जाम मोड, जो भी सूट करे वो करना, ठीक है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन आता है ना PYQ का, उसको पढ़ना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। You got to read that very nicely and then you got to take a new notebook in which you will include a few things. सबसे पहले अपने जो PYQ तुम रोज कर रहे हो सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल, ठीक है, उनको तुम्हें इंक्लूड करना है, ठीक है। उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें तुम्हें जो लग रहा है इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड पार्ट है, एक शॉर्ट समरी बना के उस टॉपिक की तुम्हें वो वहां से उठा के अपनी नोटबुक में रखना है, ठीक है। ये तुम्हें करना है। तो तुम सुबह क्वेश्चन कर रहे हो और जो तुम शाम को क्वेश्चन कर रहे हो, ये इस नोटबुक में जाने चाहिए। एग्जाम का टाइम होता है 9 से 12:30, ठीक है, संडे को, अज्यूमिंग फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी को है। सो व्हाट वील डू इज एवरी फ्रिकिंग संडे टिल दैट डेट, every freaking Sunday 9 to 12:30 we'll sit in front of our laptop or computers and we'll give that damn GT. Every Sunday from now on we'll give that GT. First GT will be your benchmark. Number of corrects बढ़ाने अपने को धीरे धीरे and percentile improve करने. The goal is not marks, the goal is number of correct and percentile. This is our goal. The goal is not marks. ठीक है, परसेंटाइल बढ़ानी है, परसेंटाइल बढ़ता रहेगा अपने आप, रैंक में शिफ्ट आता रहेगा एंड रैंक मैटर्स नॉट मार्क्स, ठीक है। हर संडे जीटी देना है, ठीक है। अब जीटी को रिव्यू करना है। जीटी देने के बाद 9 से 12:30 तुम जीटी दोगे, तुम्हें जो ब्रेक लगता है ले, सेम डे द जीटी हैज टू बी रिव्यूड, ठीक है। लाइव देने की कोई जरूरत नहीं है, प्रीवियस जीटी दो, सेम डे रिव्यू करो। रिव्यू का मतलब क्या होता है, उसमें जैसे तुम अपने PYQs के डिस्क्रिप्शन को देख के अपनी नोटबुक में डाल रहे हो, ये जीटी के डिस्क्रिप्शन हर क्वेश्चन को भी तुम्हें नोटबुक में डालना है, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या जो तुम्हें पता है कि अगर पूछ लिया वापस तो नहीं बता पाओगे। इट हैज टू बी इंक्लूडेड। आई जस्ट इंक्लूड अ सैम्पल ऑफ माई नोटबुक, आई कॉल्ड इट माई नोटबुक, यू शुड ऑल्सो कॉल इट माई नोटबुक। आई हैड 2 such notebooks till the end throughout my preparation। 6 महीने जो भी था मेरा टाइम, उस दौरान मैंने whatever questions I did, PYQs और GTs, I had included all those materials। बड़ा छोटा छोटा करके कंसाइज सा करके इंक्लूड करो। मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा कुछ पिक्चर्स, कुछ स्नैप्स उस नोटबुक के। उस माई नोटबुक में तुम्हें इंक्लूड करना है PYQs जो तुम कर रहे हो उसके आंसर्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्मेट में। यू विल सी अ सैम्पल हियर, GTs के आंसर्स, ठीक है, ये तुम्हारी नोटबुक में आने चाहिए। नेक्स्ट बात आती है अपनी कि दिन का प्लान। तो दिन का, ये अपन ने महीनों का प्लान बताया, अभी मैं तुमको सिर्फ INI तक का प्लान दे रहा हूँ। फर्स्ट गोल हैज टू बी INI। वी डोंट हैव टू क्रैक इट, वी हैव टू क्वालिफाई इट। वेरेवर वी आर, आवर गोल इज टू इम्प्रूव आवर रैंक, ठीक है, एंड गेट समवेयर, ठीक है। फर्स्ट गोल इज टू क्वालिफाई INI। ये अपना शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल है नीट में अच्छी रैंक लाना। फर्स्ट गोल आई एम गिविंग यू गाइस इज doing that INI thing, ठीक है। INI में क्वालिफाई करना है whichever rank you were at, but we don't have to indulge into INI preparation right now। we just have to focus on giving that exam as a mock test and improving our rank in whatever way possible, ठीक है, improving our percentile, ठीक है। सेकेंडली अब अपन ने मंथली प्लान देख लिया, अपन ने ये देख लिया वीकली प्लान, वीक कैसे जाएगा, एंड में जीटी होना चाहिए। डेली प्लान में क्या आएगा, डेली तुम, आई वुड रिकमेंड कि तुम एक नॉर्मल स्लीप साइकिल रखो, जल्दी उठो जल्दी सो, बट वट एवर सूट्स यू, ठीक है। उठते ही सबसे पहले लेकिन तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करने। द फर्स्ट थिंग यू गॉट टू डू इज डू क्वेश्चंस, ठीक है। उठते ही क्वेश्चंस करो, उसको नोटबुक में इंक्लूड करना है। उसके बाद तुम अपने सब्जेक्ट के वीडियोस देखो, सिर्फ रिवीजन वीडियो और MCQ डिस्कशन वीडियो करेंगे अपन, ठीक है। लार्जर वीडियोस पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी राइट नाउ, देयर इज नो नीड, ठीक है। अज्यूमिंग यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच,
रिवीजन वीडियोस में इनफ मटेरियल है अपनी रैंक को पुश करने के लिए, तुम रिवीजन वीडियोस और एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस पे फोकस करो सिर्फ फॉर नाउ, ठीक है। एंड फॉर नाउ आई मीन अगर 4 महीने का टाइमलाइन है इसमें करने के लिए सब कुछ, जस्ट फोकस ऑन दीज 2 थिंग्स, डू एज आई से, ठीक है। एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस करो, रिवीजन वीडियोस करो, उसके बाद तो डे में तुम्हें ये वीडियोस करने, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, शाम में तुम्हें फिर क्यू बैंक करना है। क्यू बैंक मतलब कस्टम मॉड्यूल, ठीक है। कस्टम मॉड्यूल तुम ओवरऑल बनाओगे, ओवरऑल मतलब सारे सब्जेक्ट का मिला के PYQs, एम्स, रिकॉल एंड दिस रीसेंट नीट, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और सुबह के MCQ होने के बाद तो ये कॉपी जो बढ़ती जा रही है ना, रोज इसे 1 घंटा देना है और फर्स्ट पेज से लास्ट रिटन पेज तक रिवाइज मारनी है, रोज ये कॉपी को रिवाइज करना है, ठीक है। शुरू में जब तुम चौथे दिन तक पढ़ोगे तुम्हें आधा घंटा लगेगा शायद, ठीक है। फिर उसके बाद वो सेम पेज 10 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद तुम्हें जो फर्स्ट पेज है ना उसमें तो पता होगा तुम्हें क्या क्या याद नहीं है और तुम सीधा वही देखोगे, ठीक है। सो समराइजिंग आवर प्लान, ठीक है। आवर फर्स्ट गोल इज looking at INI-CET, completing our syllabus till then. Our weekly goal is improving our GT rank और GT percentile, ठीक है, number of correct पढ़ाने। Our daily plan is to what? सुबह शाम को MCQ, अपनी माई नोटबुक का रिविजन, अपने गिवन टॉपिक्स का बेसिकली वीडियोस देखना और MCQ डिस्कशन वीडियो को कंप्लीट करना। जो दिनों वाइज शेड्यूल बनाए हैं उस पर स्टिक करो, आगे और जो भी हेल्प लगेगी आई हेल्प यू इन दैट, ठीक है। इन गोल्स पे स्टिक करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, जो भी नीड है, विल डू दैट पर्सनली, ठीक है। आई जस्ट पुट आउट माई नंबर, कीप डिस्कसिंग इट विथ मी, और आई रियली वॉन्ट कि ऑल द प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, like they would be very lucky to have somebody in their college or they know someone who will really help them, but I really want to help those people who don't have mentors or who don't, or maybe they are introverts and don't want to talk to seniors and they would readily watch YouTube videos. So I would like to get down and reach those people and help those people for whatever I've learned through these 6-7 months or 1.5 year of preparing for this exam. I really want to reinforce and give that confidence to that people कि यार it is doable, it is possible, it is 100% possible. अगर तुम आज नीट की फीस, नीट पीजी की सीट की फी एवरीबडी नोज इन प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस, स्पेशली द पीपल हु आर स्टडिंग देयर, ठीक है। तो everybody knows the cost of that seat. If you could really put in these 120 days और जो मैंने प्लान दिया उस पर स्टिक कर जाओ सिर्फ 120 दिन के लिए यार, you will save around I guess 50-60 lakhs per annum, ठीक है। All of you know what kind of fees the PG residents are paying. So the choice is yours, but I would really like कि if you would join, all of you would join in this journey and मेहनत करो, लगे रहो। सिर्फ 120 दिन की बात है, कर डाला तो मौज है यार। You will save a lot of money and you could invest those, all those, कहीं भी डाल सकते हो उस पैसे को, probably in your setup। तो वो जो 1.5-2 करोड़ तुम बचाने वाले हो रख दो 3 साल के लिए बैंक में, बढ़ जाएगा, अपना सेटअप खोल देना उस पैसे से, क्योंकि बहुत वैल्यू है यार पैसा बचाने की। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन विद दैट मनी, क्योंकि गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, मैं तो कह रहा हूँ तुमने 60 लाख से अपनी सीट को 30 लाख पर भी लिया है तो भी गेन है। 90 lakhs 1 CR you are saving. There's a lot of good things to do with that amount of money. So stick with me, stick with this channel, and all the best. कुछ भी हेल्प चाहिए तो I'm always there. I'll be putting out subject wise videos also, ठीक है, कि कैसे कैसे करना है और क्या क्या गोल सेट करने हैं सब्जेक्ट वाइज सीट उठाने के लिए।
and stick with me. Keep watching the videos, keep watching, keep supporting this channel. Thank you very much. So we have a couple of Telegram channels, one for ophthalmologists and another one for the UG, MBBS and NEET PG students. And we have a WhatsApp group. I have my Twitter. Please follow on all those platforms to receive all the latest updates regarding everything.